तो भारत कहाँ जा रहा है इसकी पहली रफ्तार तो आप समझ लीजिए कि स्पेसएक्स जो सैटेलाइट है उसको बड़े धूमधाम से इसरो ने लॉन्च किया है। और लंबा क्या, भारत की उपलब्धियां इतनी ऐतिहासिक हैं, इतनी सफलतापूर्ण है कि उनकी उनकी तुलना कई सालों तक लोग करेंगे। कि चीन की आज जो भी तरक्की है उसका श्रेय केवल एक आदमी को है मनीष जी, वो है देंग जियाओपिंग। वो अपने हिसाब से जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो उसको समय लगेगा, लेकिन वो भी 10 साल के समय में भी कैसे उन्होंने मैनेज किया है। सर 2024 खत्म हो रहा, मोदी तिवारा इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार। नेहरू के बाद वो पहले हैं पूर्णकालीन सरकार बनाने के लिए। और अब भारत का दांव है कि वो थर्ड आर्थिक शक्ति बनेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ। ऐसे समय में विपक्ष ने कहा कि भाई 5 ट्रिलियन की बात करी थी, कोरोना कारण सरकार का मानना है कि हर चीजों की रफ्तार कम हुई। दुनिया में भारत का जो कद बढ़ा है, इसमें आप 2025 में किस रूप में देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 2025 में भारत एक नई लकीर खींचेगा मोदी की अगुवाई में और भारत अपनी रफ्तार दिखाएगा। वास्तव में लीजिए, हम लोग ये कार्यक्रम शुरू कर रहे थे तभी वो खबर आई, उसके बाद हम लोग यहाँ बैठ गए। तो भारत कहाँ जा रहा है इसकी पहली रफ्तार तो आप समझ लीजिए कि स्पेसएक्स जो सैटेलाइट है उसको बड़े धूमधाम से इसरो ने लॉन्च किया है। वो सफल हो गया, उसकी लॉन्चिंग सफल हो गई, वो अपने गंतव्य के लिए चला गया। तो वो उसको कहा जा रहा है कि चंद्रयान 4 की जो प्लानिंग है उसके तरफ ये पहला सफल कदम है। तो ये एक तरह से आज 30 तारीख है, इस सैटेलाइट को उड़ाकर भारत ने 2025 में प्रवेश की अपने घोषणा की है। तो इसको दर्शक समझ लें कि भारत की तैयारी कैसी है और भारत के तेवर कैसे हैं, ये बड़ा साफ। ये देखिए, हाँ दिखा दीजिए मनीष जी, ये बहुत SpaceX mission. The rocket has placed the satellites in the right orbit, which is 475 kilometer circular orbit. That's only one part of the mission, injection of the SpaceX satellites. Now, in another 15 minutes, the fourth stage of PSLV will change its orbit from 475 kilometer to 350 kilometer lower orbit by first phase of firing. And also the second phase of firing will be at about 1 hour 20 minutes later after the liftoff. So that process is continuing to enable POEM operations to happen. Further to that, the spacecraft is also going to wait for the solar panel deployment. So the team spacecraft is looking at whether the panels are deployed or not. So we'll get a confirmation soon. So as far as we are concerned, the mission is very well as far as the rocket is concerned. So it has placed the satellite in the right orbit. The SpaceX 2 satellites are moved. You would have seen in the animation that they moved little one behind the other. So over the period of time, for the days, it will pick up further distance, travel to almost a 20 kilometer distance away. And then the rendezvous and docking process will start. And we hope that the docking process can happen in another 1 week. The nominal time is going to be approximately 7th of January. So I'm waiting for the panel deployment status. I think you have the status? Yes. So I would like to say that the panels of the satellites have been deployed successfully. So congratulations to the entire team of the PSLV project who put the satellite in the right orbit. Also the SpaceX team who worked very innovative, novel, cost-effective docking demonstration mission using 2 small satellite bus architecture. So congratulations to them as well. And also two very important parts of this mission is a POEM-4, where we have 24 payloads hosted, which are from the startups, industries, academic institutions, research laboratories, and also from ISRO centers. All the R&D payloads are there waiting for testing in the coming days, in fact in months. So congratulations to them for successful accomplishment of all the mission objectives through the POEM. So once again, thank you. आखिरी दिन कमाल दे, साल के आखिरी दिन इसरो का कमाल संदेश दे रहा है 2025 का।
मैं मनीष जी दर्शकों को बता दूं कि क्या गजब का संयोग है कि हम लोग एक डिबेट शुरू करने जा रहे थे और तब आया कि वो लॉन्च हो गया, उसकी फोटो दिखी हम लोगों ने, उसके बाद मैं यहाँ डिबेट में बैठ गया, मनीष जी भी बिल्कुल, अभी कुछ बैठ गए। व्यूअर्स लिख रहे थे और इसीलिए आप चाह रहे थे कि दोस्तों कुछ मिनट देर से शो शुरू हो। हाँ वो तो मनीष जी आ चुके थे, मैंने मनीष जी का मैं 15 मिनट रुक के आना चाहता हूँ, तो अभी बहुत डिटेल में ले नहीं पाया इसका। लेकिन मनीष जी मैं संयोग को करो, बड़ा सुखद संयोग है कि आज हम लोग का जो थंबनेल है कि भारत की रफ्तार के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस रफ्तार से ही शुरुआत हुई। ये हम लोग के एजेंडे में नहीं था कि इसकी बात करेंगे, तो ये स्पेस के इसरो की कि स्पेस का जो रफ्तार है, इसी रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है। और अभी एक खबर मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग दंग रह जाएंगे कि केवल भारत की रफ्तार पर ही रखूंगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। कि वो बहुत लंबा क्या, भारत की उपलब्धियां इतनी ऐतिहासिक हैं, इतनी सफलतापूर्ण है कि उनके उनकी तुलना कई सालों तक लोग करेंगे। मैं केवल रफ्तार की बात कर रहा हूँ मनीष जी, कि बड़ा दर्शक इसको बड़ा छोटे समझ लें कि जैसे आपने इसको देखा जो अभी सैटेलाइट किया है इसरो का, कि भारत में जो ट्रेन चलती थी 2014 में, उस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी थी मनीष जी? कि भारत की जो ट्रेन की स्पीड थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। और आपको ताजुब होगा कि 2024 में जो एवरेज स्पीड है वो 76 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और ये आप समझ लीजिए 50 से 51 करना, 52 करना, 55 करना, दांतों पसीने आ जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बहुत लंबा उसका पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको दुरुस्त करना पड़ता है, सारे रैक आपको ठीक करने पड़ते हैं, तब आपको ये स्पीड मिलती है। तो 50% का एक तरह से इजाफा है कि 50 किलोमीटर की जो स्पीड थी वो आज की तारीख में 75 किलोमीटर की स्पीड हो चुकी है। ये तो एक हुई कारण। दूसरे काम करने का जो स्पीड है, जो सौगात लेकर भारत 2025 के अंदर जा रहा है, और जो अभी मैंने आपको जिस रिपोर्ट का जिक्र किया था, तो ये जो अब तथ्य मैं आपको 2 ही 4 बताऊंगा, ज्यादा नहीं, कि वो उस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं कि वो कोई रिपोर्ट जो है किसी खलियर खैराती ने, कोई रवीश कुमार ने बैठ के अपने कमरे में बैठ के नहीं लिख दी। उसने जो लिखा है, उसने बड़ा लंबा अनुसंधान करने के बाद, बड़ा विश्लेषण करने के बाद वो रिपोर्ट लिखी है। और उस रिपोर्ट की पुष्टि मैं आपको बता रहा हूं कि मनीष जी 2014 में जो हिंदुस्तान की ट्रेन थी, वो जो बोझा ढोती थी, सामान ढोती थी, वो 850 या मान लीजिए 900 मीट्रिक टन, मतलब वो उसका था। और आज की तारीख में हिंदुस्तान की ट्रेनें जो हैं वो 1591 टन फ्रेट को, माल की ढुलाई वो कर रही, यानी दुगने से ज्यादा। ये कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा छलांग ये कभी नहीं लगी। और करीब करीब समझिए कि दो जो सबसे ज्यादा हुआ था, एवरेज निकला था कि 2014 में जो यात्रा पैसेंजर करते थे, यात्री जो बैठते थे, वो 2.25 करोड़ यात्री रोज, एक तरह से रोजाना आपकी यात्रा करते थे। और आज की तारीख में 3.5 करोड़ यात्री उस ट्रेन में यात्रा करते, 3.48। ये ट्रेन की स्पीड बढ़ी है और इस ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ी है। ये तो हुई एक चीज। और केवल ट्रेन का ये मामला नहीं है मनीष जी, हवाई जहाज पे आ जाइए। मैंने कहा भारत की रफ्तार बढ़ रही है कि 2014 में 10 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की थी, 10 करोड़ लोगों ने। और आपको मालूम मनीष जी 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर, उसमें कितने लोगों ने यात्रा की है? 37 करोड़ लोगों ने। कहाँ 10 करोड़ और कहाँ 37 करोड़। तो आदमी की रफ्तार बढ़ रही, तो भारत की रफ्तार बढ़ रही है कि 10 करोड़ से और 37 करोड़ आप तुलना करिए, होती रहेगी ये अधेड़, गाली बकता रहे, बौराता रहे। इसके बौराने से, गाली बकने से कोई काम नहीं होगा। और जो एवरेज जो उठाते थे वो 2 मिलियन टन जो है वो उठाते थे अपना सामान, जो जहाज के जरिए ढोया जाता था। वो आज की तारीख में 3.5 मिलियन टन सामान ढो रहे हैं जहाज। तो आपका ये माल ढोने का, और यात्री तो गजब के बड़े हैं। तो इसको तो छोड़ दीजिए आप। जो सबसे ज्यादा, जो बिल्कुल उपेक्षित था, कहीं कोई पूछ नहीं रहा था, और 2014 तक कोई पूछे, मैंने रेल की बात की, एयर की बात की,
और अब आ जाइए पानी की, जो सबसे किफायती होता है और सबसे ज्यादा समय भी बचाता है और पैसे भी बचाता है। कि आपको ताजुब होगा कि 2014 के अंदर करीब करीब 1.8 मिलियन टन सामान ढोया जा रहा था। कुल मतलब पूरे साल भर का लेखा जोखा था ये, इसको याद रखिए। यानी वहां पे सामान ढोने का कोई सिस्टम था ही नहीं। जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो वो 1.8 मिलियन टन आ रहा था। और आपको मालूम है आपकी 2023-24 में कितना सामान ढोया गया है मनीष जी उस जहाज के द्वारा? मैं 133 मिलियन टन। आप गुणा करते रहिए कि कितने गुना ज्यादा। तो ये है भारत की रफ्तार और भारत की कहाँ भारत पहुंच रहा है, किस तरह से तरक्की कर रहा है और किस गति के साथ 2025 में प्रवेश कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा बताया। अब आपको दो खबरें बताता हूं मनीष जी की, कि आपको 2020 जो जिसमें दुनिया तबाह हो गई, उस कोरोना के बाद दुनिया तबाह हो गई। और उसके बाद भारत ने क्या कमाल किया है, जिसके लिए आप प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी टीम को, या योगी जैसे मुख्यमंत्री को, योगी का नाम मैं जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि कोरोना के दौरान जिस तरह से वो योगी निकले थे, बहुत कम मुख्यमंत्री हैं गिने चुने वो निकले थे। कि कोरोना के समय 2020 में जो जापान जिसको पीछे छोड़ा है भारत ने, उसकी जो जीडीपी थी वो 5 ट्रिलियन की थी, 5 ट्रिलियन की। और आज की तारीख में 2024 में 4 साल बाद वो जीडीपी है 4 ट्रिलियन की, 4.07। यानी 1 ट्रिलियन उसकी घट गई जीडीपी। बढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए। ये है 4 साल का वो। और आ जाइए जो इनके आका हैं, जो वो सनसनीबाज और बाड़ा आड़ा जो जिनके लेके घूमते और जिनसे मिलने वियतनाम गया है, ये कि 2020 में उसकी 18 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी थी, जो जीडीपी थी, वही 2024 में भी 18 ट्रिलियन ही है उसकी जीडीपी। उसमें कहीं सूद बराबर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। क्यों है? और हिंदुस्तान का जरा देख लीजिएगा जाकर कि 2020 में जो जीडीपी 2.8 या 2.7 ट्रिलियन थी, वो आज की तारीख में 4.1 और 4.2 ट्रिलियन होने जा रही है। तो ये एक तरह से उल्टी गंगा बहाई है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने, और खासकर जो उनकी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। ये केवल आंकड़े नहीं है मनीष जी, ये एक अद्भुत कहानी है भारत के, आप कह सकते हैं भारत के सत्साहसी के दुस्साहस तो उसको नहीं कहेंगे, कि कैसे विपरीत स्थितियों में और एक नया इतिहास लिखा है। और इसके अलावा मनीष जी जरा एक और मैंने चार्ट डाला है कि आप एक चीज और गौर करिए। ये भी एक बहुत बढ़िया बात मुकुल शुक्ला जी कह रहे, भारत सभी भारतीयों को इसरो का स्पेडेक्स के सफल लॉन्च की बधाई है। 7 जनवरी को जब दोनों उपग्रह जुड़ेंगे तो भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की ओर अग्रसर होगा। ऐतिहासिक सफलता है और इसके आगे आने वाले समय में परिणाम मिलेंगे। और मुकुल शुक्ला जी से मैं यही कहूंगा कि आप जरा, और सारे दर्शक, पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस उपलब्धि के साथ भारत 2025 में प्रवेश कर रहा है। तो ये रंगबाजी है, ये रंगबाजी। और यही वो कह रहे हैं कि चीन लगातार डोकलाम में अपने गांव बसा रहा है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बन रहा है। भारत नए खतरे लादने की तैयारी में है। ऐसे बांध से, ऐसे भविष्य से भारत में बाढ़ लाई जा सकती है। जी तारतम्य टूट गया। मैं क्या बात कर रहा था, देखिए आप ये बात कर रहे थे कि 2025 में भारत कहां जा रहा है। हाँ, 2025 में किस रंगबाजी के साथ प्रवेश कर रहा है। रंगबाजी के साथ प्रवेश कर रहा है, ये रंगबाजियों का हिस्सा है। जी हाँ, इसका एक छोटा सा आपको मैंने उदाहरण दिया, रेल का, एयर का और ये पानी का। और उसके अलावा स्पेस वाला तो अभी आपने देखा ही देखा। और ये मनीष जी एक मैंने चार्ट और डाला है, जरा चीन की ग्रोथ आप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी
2047 में जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैंने चीन के डाटा निकाल के रखे हैं और आप उसको देखकर चौंकेंगे। चीन की हाँ प्रगति के रफ्तार का सच। हाँ मनीष, धीरे धीरे चले। देखिए, चाइना की जीडीपी 1980 में 303 बिलियन थी, ये दर्शक समझे। और उसके बाद चीन की जीडीपी 1990 में 395 बिलियन थी, यानी 395 बिलियन का, ट्रिलियन का तो छोड़ दीजिए। और इस यहाँ रुक जाइए मोदी जी, 1990 में आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की भी जो जीडीपी थी वो 3.73 बिलियन थी, यानी इसी के आसपास थी। हम बहुत पीछे नहीं थे, ये सबसे खास बात है। लेकिन 2000 में वो 395 बिलियन बढ़कर हो गया 2.28, यानी 2.3 ट्रिलियन हो गई वो इकोनॉमी। ये जरा स्पीड देखिए। और ये स्पीड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी, इसका कारण बताऊंगा कि 2.3 हो गई। और 2010 जब आया तो 6 ट्रिलियन हो गई, यानी 2000 से 2010 के बीच 6 ट्रिलियन हो गई। और जब ऊपर भारत आइए, में लूट और भ्रष्टाचार का दौर चल रहा था। हाँ, और जरा ऊपर आइए, और 2020 में 18.5 ट्रिलियन हो गई। लेकिन 18.5 ट्रिलियन, ये 2 बार मैंने लगा दिया इसको। और नीचे आइए मनीष जी कि 18.5। और ये देखिए जरा, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि जीडीपी इन चाइना इज एक्सपेक्टेड टू रीच 18.64 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ 2024, यानी जो 2020 में जहां टिका था, चीन अब भी वहीं पर टिका हुआ है। और भारत अपने आप आगे बढ़ रहा है। और आने वाले 2025 और 26 के लिए पूरे दुनिया की जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो ये कह रही हैं कि भारत की रफ्तार सबसे तेज होगी। हटा लीजिए इसको मनीष जी, मैं आपको इसका मतलब सर, ये इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिस समय भारत में सोनिया की मनमोहनी सरकार थी और लूट मचा हुआ था, हम गर्त में जा रहे थे और चाइना छलांग लगा रहा था। यदि उस समय में मतलब वाजपेयी जी की सरकार यदि रिपीट हो गई होती तो हो सकता है कि आज हम चाइना से आगे होते। मैं अभी मनीष जी वही समझाने जा रहा कि जो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि 2047 में भी वर्ल्ड विश्व गुरु, और वो तो कहते हैं कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी। मैं कुछ और देख रहा हूं मनीष जी आने वाले समय में, और यही सरकार अगर रही तो, कि अभी आपने देखा कि 1980 में $300 बिलियन और 10 साल बाद $395 बिलियन। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया था। और ये मैं अक्सर अपने कार्यक्रम में कह चुका हूं कि चीन की आज जो भी तरक्की है उसका श्रेय केवल एक आदमी को है मनीष जी, वो है देंग जियाओपिंग। और उन्होंने संभवतः 78 या 79 में सत्ता संभाली थी चीन की आकर सामने। और उन्होंने चीन के सारे बवाल खत्म किए थे जो दुनिया भर के लफंगाई करते थे, और सिर्फ वो इकोनॉमी पर कंसंट्रेट कर गए थे। तो चीन ऐसा देश जो हमारे बराबरी देश था, उसको संभालने में, आगे बढ़ाने में, तो जो पहले मजबूत तैयार करनी थी, नींव तैयार करनी थी, तो उसमें उनको 10 साल लगे कि 3 बिलियन से 3.95 बिलियन पहुंचने में उनको 10 साल लगे। और उसके बाद फिर आपने देखा कैसी छलांगे मार रही कि 3.95 बिलियन से 2.25 बिलियन पहुंची, और उसके बाद वो 18 बिलियन पे आज की तारीख में है। तो मैं अब आप इसको जरा नरेंद्र मोदी से तुलना करिए कि नरेंद्र मोदी को 2 बिलियन पे मिली थी, तो आज वो उसको बढ़ाकर मतलब आप 1.8 ट्रिलियन थी जिस समय नरेंद्र मोदी ने संभाला था 2014 में जीडीपी। और 1.8 ट्रिलियन से आज की तारीख में 4.1 और 4.2 ट्रिलियन की ये जीडीपी 10 साल में नरेंद्र मोदी घसीट कर ले गए हैं। तो ये 10 साल बड़े कठिन थे। यहाँ पर सब कुछ खुद ही बोना था, खुद ही काटना था, खुद ही उगाना था, खुद ही सब कुछ करना था। लेकिन जो अगले 10 साल हैं वहां पे रफ्तार ये नहीं रहेगी, वहां पे रफ्तार ये नहीं रहेगी। तो आने वाला 10 साल और उसके बाद का आने वाला 10 साल, तो ये चीन और जो हमारे और प्रतिद्वंदी हैं इनके दांत खट्टे हो रहे हैं, क्योंकि वो दूर की देखते हैं। वो आज की तरह, वो टोटी वाले की तरह कि आज तुरंत गिरा लो, तुरंत बवाल कर दो, ये नहीं है। और चीन को तब 10 साल लगे थे अपनी रफ्तार पकड़ने में, जब चीन में कोई विरोध का तो कोई मतलब ही नहीं था। जो कह दिया
जो कई जिसने विरोध किया उसको उसको ऊपर टैंक ही चला देते थे, तो टैंक मैन बड़ा मशहूर है, कैमरे के सामने उसको टैंक चल गया। तो ऐसा इस तरह के नंग नाच के बाद, इस तरह के हुड़दंग के बाद नरेंद्र मोदी ने 10 साल में इकोनॉमी को एक तरह से दूनी लेके खड़ी कर दिया है। और अगले 10 साल मैंने इसीलिए अभी आपको चीन की खबर दिखाई कि चीन की रफ्तार आप देख लीजिए कैसे वो बढ़ रहा था, और आना भारत जो है उससे बहुत आगे बढ़ेगा। केवल ये सरकार रहे, प्रधानमंत्री मोदी रहे, और 10 साल तो मैं भगवान से मना रहा हूं कि 10 साल यही रहे। बिल्कुल सर, इसकी तुलना मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हालात से भी समझना होगा कि आज जब पाकिस्तान में यूट्यूबर्स बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब कितना अंतर हो गया, जैसे भारत और चाइना के बीच मनमोहनी सरकार के दौरान अंतर था, कहां वो हमसे बहुत आगे था। और पाकिस्तान जो अपने आप को पैरेलल समझता था सोनिया के मनमोहनी सरकार के दौर में, आज पाकिस्तान कहीं भी भारत के साथ तुलना में अपने आप को नहीं पा रहा है। जैसे हम मनमोहनी सरकार के दौरान चीन से किसी भी स्तर पे तुलना लायक नहीं थे। तो ये फर्क बताता है नहीं, आगे जो आप इशारा कर रहे हैं कि अगले 10 साल में चीन को आप ऐसे समझिए कि वो मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर इसको दोहरा देता हूं आज थोड़ा, क्योंकि मैंने आज चीन का आपको बड़ा सामने रख के उसका विश्लेषण किया कि 2003-4 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें चीन हमारे साथ $1 अरब के व्यापार घाटे में था। वो $1 अरब के व्यापार घाटे में, और 2014 में जब वो गया है तो 35 अरब व्यापार घाटे में हम थे। यानी वो $1 अरब का घाटा तो उसका खत्म हुआ, और हम $35 अरब घाटे में चीन के साथ चल रहे थे। तो वो जो $35 अरब का चीन का घाटा था, वो केवल आप डॉलर से मत देखिए, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी उसकी कमर तोड़ दी थी। ये जो महान अर्थशास्त्री बैठा था, इसने उठाकर हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग उस चीन को हवाले कर दी थी। आपको याद होगा मनीष जी, किस तरह से होली दिवाली में छोटे छोटे आइटम जो है चीन की जगह से पटे रहते थे। अब तो नरेंद्र मोदी गए हैं, तो आए हैं, तो वो चीजें गायब हुई हैं। और सीमेंट जो था, सीमेंट कह रहा हूँ, सरिया था, आपका उसकी बात करिए, टॉय खिलौने की, वो चीजें जो आम आदमी की निगाह में जाती हैं, कि आप याद करिए लियो टॉय हर दुकान पे मिलता था। लियो टॉय गायब गायब हो गया था 2004 के बाद से, और 2014 बिल्कुल लापता था। तो ये जब $35 अरब की आज से 20 साल पहले आपने इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग उठाकर चीन को दे दी, उससे ले लेकर काम चलाते रहे, तो जाहिर सी बात है कि अगला आने वाला 10 साल तो कमर टेढ़ी कर दी आपने नरेंद्र मोदी की, कि वो अब वो कैसे कैसे निपट के कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। वो चीन के साथ घाटा हमारा लगातार बढ़ता है। कुछ मनी जी मूर्ख आ जाते हैं कि अब वो तो $35 अरब था, तो $70 अरब हो गया। अरे क्योंकि हिंदुस्तान की जरूरतें बढ़ चुकी हैं और मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। 10 साल उठाकर सब तुमने दे दिया चीन को, तो अपना क्या काम रोक देगा हिंदुस्तान? वो अपने हिसाब से जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो उसको समय लगेगा, लेकिन वो भी 10 साल के समय में भी कैसे उन्होंने मैनेज किया है ये वही जानते होंगे। वो हम लोग तो यहाँ बैठ के बताते हैं, पढ़ते हैं। तो वो आप गौर करिए कि 10 साल आपकी मैन्युफैक्चरिंग नील थी। 35 तब अरब लगता है कि सोरस के और ये एजेंटों के द्वारा कभी शाहीन साजिश, कभी ये किसान आंदोलन से भारत की रफ्तार रोकने की कोई सी साजिश की, और किस स्ट्रेटजी के साथ मोदी ने उसको निपटाया। वरना चला देते, कई लोग कह रहे थे ना कि बुलडोजर चला देते शाहीन साजिश पर, किसान आंदोलन पे। तो दरअसल वो साजिश थी, वो चाहते ही यही थे कि सरकार जो है बुलडोजर चला दे, लाठी चला दे, और उसके बाद अपनी अस जाल में खुद ही फंस जाए सरकार। मैं मनीष जी दर्शकों को समझा दूं, $35 अरब सालाना ये व्यापार घाटा था। तो $35 अरब की मैन्युफैक्चरिंग आप गिरवी रखे हुए थे, सब खत्म किए हुए थे। ये बैठ के यहाँ वाहवाही लूट रहा था मनमोहन सिंह, चला गया वो, अब उसको महान अर्थशास्त्री बताते हैं। तो वो आज की तारीख में जो जो मैन्युफैक्चरिंग थी, आज हिंदुस्तान की जो वो है डिमांड जो है उससे बहुत ज्यादा हो चुकी, लेकिन आप बना नहीं सकते। आप बना सकते तो आपको तो लेना ही पड़ेगा उससे। लेकिन अब वो धीरे धीरे कैसे कम होगा, कि आगे क्या आने वाला समय क्या होगा, इसीलिए मैंने 10 साल का आपको दायरा बताया। और ये जो अब आने वाला 10 साल है, इस 10 साल में बड़े चौंकाने वाले परिणाम होंगे, हम आप सब देखेंगे। कोई बहुत लंबा मैं समय नहीं बता रहा हूं, और इसीलिए मैंने आपको चीन का वो चार्ट दिखाया
कि चीन ने कैसे छलांग लगाई थी और उससे ज्यादा गति से भारत छलांग लगाएगा, ये निश्चित रही है। क्योंकि भारत जो है वो दूसरे तरह की तैयारी कर रहा है और उसके पास वर्क फोर्स है और मेधा भी उसके पास चीन से ज्यादा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कोई बड़बोलेपन के या बड़ा राष्ट्र प्रेम में डूब के मैं नहीं कह रहा हूँ, कि उसकी गवाही आपको अमेरिका में बैठे जो सीईओ हैं वो दे देते हैं। कि आपको ताजुब होगा सुनकर कि 80% या 82% 300 कंपनियों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है वो हिंदुस्तानी है। वहां पर चाइना का आपको कहीं दिखता है जो टॉप की मल्टीनेशनल है कि वो हेड कर रहा हो, जैसे हिंदुस्तानियों के बड़े नाम आते हैं। तो वो हिंदुस्तान की मेधा का कोई जवाब नहीं है। एक अभी आपने प्रदर्शन देखा जो इसरो वाला है, तो आने वाला 10 साल ये वास्तव में स्वर्णिम काल है। और ये कुछ बवाली है यहाँ पर जो एजेंडे पे है। बिल्कुल, और हम सब इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे 2025 में क्या कुछ बदलने वाला है और भारत की रफ्तार कहां जाने वाली है। पूरी दुनिया की सारी एजेंसियां ये कह रहे हैं कि भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो पूरी दुनिया से दुगनी और तिगुनी होगी। कोई 2% पे है, कोई 1.5% पे है, कोई 3% पे, और हिंदुस्तान को कोई 6.8 कह रहा, कोई 7 कह रहा। तो ये अपने आप में बता रहा कि भारत इस समय बिल्कुल अपने घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहा है।